صارفین کے لیے بری خبر، مہنگی بجلی مہنگی کر دی گئی ہے۔ مزید بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ تک اضافے کی منظوری۔ نیپرا نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کو فیصلہ بھجوا دیا۔ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے بعد قیمتوں میں اضافہ لاگو ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد بتائیے۔ مہنگائی کی چکی میں پھنسی ہوئی عوام کو بجلی کے جو ہے وہ مسلسل جھٹکے لگائے جا رہے ہیں۔ پہلے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی جاتی تھی اور اب جو ہے وہ حکومت کی جانب سے بنیادی ٹیرف جو بجلی کا ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا نے اپنا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق بجلی کی بنیادی ٹیرف میں جو ہے وہ 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ تک جو ہے وہ اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کو فیصلہ جو ہے وہ بھجوا دیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی سے کیا جائے گا۔ حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد اس کا فیصلہ جو ہے وہ لاگو کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا، تاہم اب جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے 200 سے زائد یونٹ جو استعمال کریں گے اس کے لیے جو ہے اضافے کی جو منظوری ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ فہد۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کی دستیابی کا مسئلہ برقرار ہے۔ شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز سے چینی اور آٹا غائب ہونے لگا۔ گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد محدود مقدار میں آٹا مل رہا ہے۔ صارفین سستی چینی اور آٹے کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی ریلیف نہ ہونے کے برابر۔ شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹور سے سستی چینی کے ساتھ ساتھ آٹا بھی غائب ہونے لگا۔ بزرگ شہری کئی گھنٹے انتظار کرنے پر مجبور۔ گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد محدود مقدار میں آٹا مل رہا ہے۔ شادمان یوٹیلیٹی سٹور پر آئے شہریوں نے کہا کہ گھنٹوں انتظار کے بعد بھی کبھی کبھار ہی آٹا ملتا ہے۔ حکومت نے ریلیف دیا ہے تو اشیاء کی وافر مقدار میں سپلائی بھی یقینی بنائے۔ لائن جو لگے ملتے کوئی نہیں، ویسا جی چلے جائے نہ ہے نہیں، جی آٹا کوئی ختم ہو گیا، جو سے پہنچ جائے تو ختم ہو آٹا ختم۔ آدمی 500-600 ہوتا ہے اور تھوڑا جو ہے نا 100 اترتا ہے، اس میں سے بھی جو ہے نا یہ دے دیتے ہیں جو ان کے واقع ہوتا ہے ان کو دے دیتے ہیں۔ ہم جو ہے نا ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ مجھے کافی دن ہو گئے میں آ رہا ہوں لیکن نہیں مل رہا، بازار سے لے کے کھا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1450 روپے میں مل رہا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 650 روپے مقرر ہے۔ مہنگائی کے وار جاری، سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ پولٹری مصنوعات بھی قوت خرید سے باہر۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، گزارا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اوپن مارکیٹ میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے۔ انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کرانے میں بھی مسلسل ناکام ہے۔ اوپن مارکیٹ میں پیاز 90، ٹماٹر 160 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ میتھی 320، بینگن 150 اور گاجر چائنا 130 روپے فی کلو میں مل رہی ہے۔ لہسن 520، ادرک 1100 روپے فی کلو میں مل رہا ہے۔ سبز مرچ 110 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ عوام کہتے ہیں کچھ بھی سستا نہیں رہا، سبزیوں کی قیمتیں کم ہی نہیں ہو رہی۔ جو پیاز ہے وہ بھی مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے، کہہ رہے بارشیں ہو رہی ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ ٹماٹر ہے 140 روپے کلو دے رہے ہیں اور سبزی کوئی بھی 100 سے نیچے نہیں ہے، اتنی مہنگی سبزی ہیں۔ پھل تو غریب بندہ ویسے نہیں کھا سکتا، بہت مہنگائی ہے۔ بہت مشکل گزارا ہوتا ہے، چکن تو دالیں تو سبزی بھی نہیں کھا سکتے ہم لوگ۔ برائلر گوشت 579 روپے فی کلو، جبکہ فارمی انڈے 267 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت نے اسٹامپ ڈیوٹی ایکٹ کے شیڈول 1 میں ترمیم کر دی ہے۔ بیان حلفی کے اسٹامپ پیپر کی قیمت 100 سے بڑھا کر 300 روپے کی گئی ہے۔ پراپرٹی کی فروخت پر معاہدے کے لیے 1200 روپے کے بجائے اسٹامپ پیپر کی قیمت 3000 روپے مقرر کر دی گئی۔ کسی بھی معاہدے کے لیے اسٹامپ پیپر کی ڈیوٹی 3000 سے 30000 روپے تک مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پاور آف اٹارنی کے لیے استعمال ہونے والے اسٹامپ پیپرز پر ڈیوٹی کی فیس 2000 روپے سے 3000 روپے کر دی گئی۔ طلاق کے لیے اسٹامپ پیپر ڈیوٹی 100 روپے کے بجائے 1000 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ رواں مالی سال میں اسٹامپ ڈیوٹی پر شیڈول 1 میں کی گئی ترامیم سے 4 ارب کی آمدن حاصل ہوگی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلحہ لائسنس بنانے اور اس کی تجدید کی فیسوں میں بھاری اضافہ۔ نگران پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد تمام فیسوں میں 2000% تک اضافہ کر دیا گیا۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔
इंफरादी और कमर्शियल असला लाइसेंस बनाने और उनकी तजदीद इंतहाई महंगी हो गई। निगरान पंजाब काबीना की आर्म्स रूल्स 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली के बाद फीसों में 2000% तक इजाफा हो गया। जाती हिफाजत या शिकार के शौकीन अफराद को असला लाइसेंस बनाने पर 10,000 के बजाय अब 50,000 रुपए अदा करना होंगे, जबकि असला लाइसेंस की तजदीद पर 1,000 के बजाय 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ऑल पाकिस्तान असला लाइसेंस के लिए फीस 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। निजी इदारों सिक्योरिटी कंपनियों के नए असला लाइसेंस बनाने की फीस 7,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है। नादरा असला लाइसेंसिंग प्रोसेसिंग फीस 1,400 से बढ़ाकर 2,000 रुपए मुकर्रर। डुप्लीकेट असला लाइसेंस बनाने के लिए अब 1,000 के बजाय 5,000 रुपए अदा करने पड़ेंगे। गोलियों की तादाद बढ़ाने की फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए फी गोली कर दी गई। असला लाइसेंस पर दर्ज हथियार या बोर तब्दील करने की फीस भी 1,000 के बजाय 5,000 रुपए मुकर्रर। वरासत की बुनियाद पर असला लाइसेंस ट्रांसफर की फीस 1,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। असला डीलरशिप के नए लाइसेंस की फीस में भारी इजाफा, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए मुकर्रर। डीलर के लाइसेंस की तजदीद के लिए फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। असला तैयार करने वाली कंपनियों के नए लाइसेंस की फीस भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, जबकि उनके लाइसेंस तजदीद की फीस 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। असला मुरम्मत करने वाले अफराद को भी नए लाइसेंस की फीस 20,000 के बजाय 1 लाख रुपए, जबकि लाइसेंस की तजदीद पर 10,000 के बजाय 50,000 रुपए अदा करना होंगे। असला लाइसेंस की फीस में 2000% तक इजाफा तारीख में पहली बार हुआ है। बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर की उड़ान जारी है। बैंकारी औकात में डॉलर की कदर में मजीद 60 पैसे इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल को इंटरबैंक डॉलर रेट 288 रुपए की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 288 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट कम अज़ कम 296 रुपए रहा। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते में भी डॉलर मुसलसल महंगा हुआ था और रवां हफ्ते भी इसका तसलसल जारी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर डीलर मार्जिन 1 रुपया 64 पैसे बढ़ा दिया। चेयरमैन ओगरा की जानिब से डीलर मार्जिन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। 5 एक साथ में डीलर मार्जिन बढ़ाया जाएगा। डीलर मार्जिन पर हर 15 दिन बाद 41 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाया जाएगा। 1 रुपया 64 पैसे इजाफे के बाद डीलर मार्जिन 3% की सतह पर पहुँच गया। पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 2.40% रह गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 6% डीलर मार्जिन का मुतालबा किया था। और अभी आपको बताएं, इम्पोर्टेड गैस के मुताबिक एलपीजी की कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का ओगरा ऑफिस लाहौर के बाहर भरपूर एहतजाज। 5 और 6 अगस्त को मुल्की शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। हम नहीं मानते, जीना होगा, मरना होगा, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का ओगरा ऑफिस के बाहर एहतजाज। हुकूमत से इम्पोर्ट गैस के मुसावी ओगरा रेट मुकर्रर करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इम्पोर्ट गैस को लोकल प्रोडक्शन रेट पर फरोख्त नहीं कर सकते। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर मुतालबात न माने गए तो 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। 5 और 6 तारीख वाले दिन ऐसी हड़ताल करेंगे, पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद तक हमारा रैली जाएगी और ये हुक्मरानों को इंशाल्लाह ताला मैं इनको पकड़ के बाहर निकालेंगे दफ्तरों से। इंशाल्लाह हमारी बात ये मानेंगे। पाकिस्तान की जितनी भी सप्लाई है एलपीजी की, वो इंपोर्ट की बुनियाद पर है। आप इंपोर्ट की बुनियाद पे लेटर नहीं निकालते। लोकल प्रोडक्शन आपके पास है नहीं, सरकारी प्लांट आपके बंद है तमाम। अगर आप प्लांटों से हमें सरकारी कीमत पे गैस मुहैया कर सकते हैं, हम आपके रेट से भी कम पे बेचेंगे। दूसरी जानिब ओगरा के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुतालबात पूरे करने की हामी भरी है। ओगरा ने हमेशा हर दौर के अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया है और इनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे और जो इनके जायज़ मुतालबात हैं उनके ऊपर ओगरा पूरी तौर पे एक्शन लेगा और पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, इनको भी रिलीफ मिलेगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने मुतालबात पूरे होने की सूरत में सरकारी रेट से भी कम कीमत पर एलपीजी फरोख्त करने की यकीन दहानी कराई है। मुल्की एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मामला। सिविल एविएशन तंजीमों का लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट्स को आउटसोर्सिंग की मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ करार दिया। कहते हैं हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी न की तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। मुल्की एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मामला। सिविल एविएशन मुलाजमीन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाहौर एयरपोर्ट पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी भी की।
आउटसोर्सिंग 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 आउटसोर्सिंग। सिविल एविएशन की तंजीम अकाई के चेयरमैन एयाज भट्ट ने कहा कि 148 अरब रुपए का मुनाफा देने वाले अदारे की निजकारी समझ से बालातर है। हुकूमत का आउटसोर्सिंग का फैसला मुलाजमीन के साथ जुल्म है। मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। हम कोई नुकसान में नहीं जा रहे, ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श अदारा है। 148 अरब रुपया जिस अदारे की इस साल की इनकम हो, आप उसको आउटसोर्स करने चले हैं। आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं। इन 3 एयरपोर्टों की इनकम पे हम अपने मुल्क के 42 एयरपोर्ट चला रहे हैं। अभी ये हमारा आगाज़ है, हमारा स्टेज बाय स्टेज एहतजाज जो है बढ़ता जाएगा। एहतजाज में शरीक खवातीन और मर्द मुलाजमीन का कहना था कि एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। एक चीज़ को आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं तो उसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं, मुलाजमीन का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ये सबकी रोजी रोटी का सवाल है, पूरे ख़ानदान इससे वाबस्ता है। 2022-23 का जो हमारी इनकम है वो 148 अरब रुपए है। बावजूद इस इदारे को फिर भी बेचा जा रहा है। और एक सेठ को आप बताएं कि जब आउटसोर्सिंग होती है फ़ायदा किसको होता है? सेठ को होता है, मुलाजमीन को नहीं होता। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने से? सिविल एविएशन तंजीमों ने ऐलान किया कि 1 अगस्त को इस्लामाबाद और 8 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज होगा, जबकि 17 अगस्त को कराची में धरना दिया जाएगा। कैमरामैन उमैर फजल के साथ रहील ली, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विस अस्पताल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में बदनज़मी और सहूलियात के फुकदान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अस्पताल में एयर कंडीशनर्स की बंदिश पर डायरेक्टर फाइनेंस को ओहदे से हटाने की हिदायत की। अस्पताल की पार्किंग का ठेका लाहौर पार्किंग कंपनी को देने का हुक्म जारी किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी 3 घंटे तक अस्पताल में मौजूद रहे। सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक के जारी तामीराती काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने 31 जुलाई तक इमरजेंसी को फ़ाल बनाने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पताल की हालत देख कर निहायत अफसोस हुआ। गुज़श्ता 3 माह में जितने अस्पताल देखे, ये अस्पताल सबसे बुरी हालत में है। अस्पताल के किसी भी वार्ड में एयर कंडीशन नहीं चल रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर फाइनेंस को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अस्पताल की पार्किंग का ठेका भी लाहौर पार्किंग कंपनी को देने की हिदायत। किसी दुश्मन को भी इस ऑपरेशन थिएटर में ना भेजो जिस हालत में ये ऑपरेशन थिएटर है। लोगों के साथ ज्यादती है। ये चाहे मुझे रोज़ आना पड़ा, सेक्रेटरी साहब को रोज़ आना पड़ा, मिनिस्टर साहब को रोज़ आना पड़ा, हम रोज़ आएंगे। जितना देर हमारे पास है इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे हर दिन में इस हॉस्पिटल को वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बना के जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी हेल्थ को हिदायत की कि वो पंजाब भर के अस्पतालों से पुराने बेड्स हटा दें और 2.5 अरब रुपए मालियत से 15,000 नए बेड्स लगाए जाएं। बारिश हुई तो कोशिश होगी पानी को जल्द निकाला जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब के हवाले से पूरी तैयारी कर रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग का इशू बहुत है। शहर का निज़ाम ऐसा नहीं कि पानी फ़ौरन निकले। मुहर्रम और हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। जहां ज़रूरत हुई वहां मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की जाएगी। अगले 4 दिन भी सब लोग फील्ड में होंगे, खुद मॉनिटर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी सबकी दुआ है कि सब खैर खैरियत से मुहर्रम गुजारें और पुरअमन हो के और इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ सारे मुसलमान ये गुजारें। ये अर्बन फ्लडिंग का इशू बहुत ज़्यादा आया हुआ है। हमारे शहर उतने प्लान नहीं है जितनी बारिशें हो रही हैं। हम 100 mm के बाद हमारे बारिश हालात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पिछले जितनी दफ़ा भी हुआ है हमारा 4, 5, 6 घंटे में सारा शहर का पानी निकाला है। अल्लाह ताला खैरियत रखे। अभी भी हमारी यही कोशिश होगी, बारिश आएगी और हम उसको कोशिश करेंगे जल्दी निकालें। चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, ये लोग लगे हुए हैं, ये रोज़ की बुनियाद पर मीटिंग भी कर रहे हैं, अपडेट्स भी ले रहे हैं। तो अल्लाह खैर रखे। देखें, हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर ने ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन कर्जा देने वाली ऐप्स चलाने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद सुलेमान, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद अवैस शामिल हैं। FIA के मुताबिक मुलजिमान शहरियों को मुख्तलिफ फ़ोन नंबर से धमकी मिस कॉल्स करके हरासा करते थे। मुलजिमान मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए शहरियों को कर्ज फराहम कर रहे थे। मुलजिम बाद अज़ां कर्ज की वसूली के लिए ब्लैक मेलिंग के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते थे। शहरियों को एडिट शुदा काबिल एतराज़ तस्वीर और वॉइस कॉल के ज़रिए हरासा करते थे। चुंगी अमरसद्दू में फायरिंग करके 4 अफराद को ज़ख्मी करने वाले 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान फैक्ट एरिया पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मोहम्मद मोहसिन, उस्मान, उसामा, यासिर मलिक और दीगर को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। SP कैंट अवैस शफीक के मुताबिक कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने और जिना हाउस पर हमले का मामला। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक MNA रुबीना जमील के जुडिशल रिमांड में 13 रोज़ की तौसीक कर दी। 25 PTI कारकुनों के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीक की गई है। पुलिस की गाड़ियां जलाने और जिना हाउस पर हमले के मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने समाअत की। साबिक MNA रुबीना जमील को जुडिशल रिमांड की मयाद खत्म होने पर जेल से अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल रिमांड में तौसीक की इस्तदा की। अदालत ने रुबीना जमील के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसीक कर दी। मुलजिमा को 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ गिराव के केसेस की भी समाअत हुई। अदालत ने 25 PTI कारकुनों के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। मुलजिमान को जुडिशल रिमांड की मयाद खत्म होने पर जेल से अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में तौसीक की इस्तदा की थी। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को मुलजिमान के खिलाफ चालान जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इंतशार अंगेज़ गुफ्तगू और पुलिस एहलकारों से झगड़े का केस। जिला कचहरी अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जिला कचहरी अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस पर समाअत हुई। वकील ने बताया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर आबाई शहर मानसहरा में है। मानसहरा में शदीद बारिशों के बायस अदालत पेश होना मुमकिन नहीं, लिहाजा अदालत 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। थाना इस्लामपुरा पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ चालान पेश कर रखा है।